हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.5 in which question 1 and 2 we have already completed in our last video. Question 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 13, I think up to 13 I have given in homework. So let me show you the solution of the questions from 3 to 13. Okay, this is what the solution of question 3 and 4. The question says that a into adjoint a equal to adjoint into a equal to determinant a into I. We just need to verify this. This is again similar to one of the example which already we have solved in our last videos. As you can see, if you want to verify this one, we need to find adjoint a, as we have a already. So let a is equal to this one for question 3, and if you want to find adjoint a, I have directly written these things because whenever question is bigger, you don't need to make the procedure for adjoint a for 2 by 2 matrix only. For 3 by 3 matrix, always you need to make full procedure, that is a11, a12, a13, like this you need to write, and then you can find adjoint a. But whenever 2 by 2 matrix is there, you can write the shortcut directly if question is bigger. अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए का। अगर क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज यू नीड टू apply full procedure. Okay, and for that also I have given one shortcut procedure in rough work that you need to apply, and then based on that you can find the answer of a11, a12, a13, all the cofactor of that elements. Okay, and based on that you can easily find, or you can easily write the adjoint a in 3 by 3 matrix. So let's continue with question 3 again. So this is a, this is adjoint a. Just need to interchange the primary diagonal and need to change the sign of secondary diagonal. Okay, and determinant a, that is equal to 0. So based on that we have a into adjoint a, so we can find a into adjoint a by just multiplication. That is what equation 1. Adjoint a into a, again if we just reverse this multiplication, and if we got answer, then again we get 0 0 0 0. And if you want to find determinant a into I, then determinant a equal to 0, 0 into I matrix, that is also 0 matrix. So based on question based on result 1, 2 and 3, we can say that a into adjoint a equal to adjoint a into a equal to determinant a into I. And similarly question 3 and question 4 both are there. For both the question we need to verify this one. So for question 4 we need to find again adjoint a. So we have applied this procedure, and as you know that to apply this procedure we need to use this rough work. First of all we need to write this matrix, okay, this matrix, and then write first row and second row, and then first column and second column over here, and then just delete first row and first column, and then just cross multiply, and whatever answer we get just put it here for first column. Second column के आंसर यहाँ पे रख दो, and for the answer of third column you just need to fill this position. Based on that adjoint a equal to, ये जो भी पोजीशन में आंसर मिले वही पोजीशन में लिख लो उसका ट्रांसपोज, एंड देन अगेन रो टू कॉलम करके ट्रांसपोज फाइंड कर लो. दैट इज व्हाट योर फाइनल एडजॉइंट ए. इट मीन्स यू नीड टू अप्लाई दिस होल प्रोसीजर. आपको इतनी प्रोसीजर अप्लाई करनी है एग्जाम में भी, वेदर वो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, इनवर्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो या सिर्फ एडजॉइंट ए फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो या इससे भी बड़ा क्वेश्चन हो, बट यू नीड टू अप्लाई दिस होल प्रोसीजर. ओके, देन व्हाट वी नीड टू वेरीफाई, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए. सो मैंने पहले a इंटू एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर लिया, a मैट्रिक्स मेरे पास था, एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया था, जस्ट मल्टीप्लीकेशन, वी गॉट दिस आंसर. एंड इसमें से a 11 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो आई कैन राइट i 11i. अगेन एडजॉइंट a इंटू a, ये जस्ट ऑर्डर को चेंज करके फिर मल्टीप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे पूछा है, इसको भी वेरीफाई करो. सो बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, बाय changing order, if we find the multiplication, again we get this similar answer 11i.
and if you find determinant a into y, that is also 11i. So based on result 1, 2 and 3, we can say that a adjoint a into a equal to determinant a into I. All the answer are 11i. Okay. Now moving towards question 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. For all these question we just need to find inverse of all the matrix if exist. If exist means what, कि अगर किसी के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास पता है फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, कि एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए. अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो होती है तो ऑब्वियसली इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर ऑल द मैट्रिक्स, एंड देन इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम इनवर्स फाइंड करेंगे. ठीक है. सो प्रोसीजर क्या होगी, क्वेश्चन 5 के लिए देख लो. क्वेश्चन 5, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और उसके बाद तुरंत ही डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. व्हाट वी गेट 14. अगर 14 है विच इज़ नॉट जीरो सो इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ एडजॉइंट ए की प्रोसीजर आपको पता है, a11, a12, a21, a22, ये सब पीछे से लिखना है, पहले शॉर्टकट अप्लाई कर देना है. ये लास्ट का आंसर हमको पता होता है क्या होता है, बस इसके प्राइमरी डायगोनल के ऑर्डर को चेंज करो, 2 3 बिकम 3 2. ठीक है. और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज कर लो. सो -2 4 बिकम 2 -4 2 -4. अब यहाँ से रो 2 कॉलम करके ये लिख लो, फिर ऊपर ट्रांसपोज करके, फिर ये a11, a12, a21, a22 सीक्वेंस में ये वही आंसर जो यहाँ पे बने हैं वही आंसर लिख दो, 3 -4 2 2. दैट इज व्हाट द एलिमेंट वी हैव रिटन इन दिस वन. ओके. एंड देन इफ यू वांट टू फाइंड ए इनवर्स, देन एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए. एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, डिटर्मिनेंट ए ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, सो दोनों की वैल्यू रख दो, है ना. 1/14 इंटू एडजॉइंट ए, वट एवर वी हैव गॉट हियर. ओके. सिमिलरली क्वेश्चन 6, by seeing solution, by watching solution you can easily understand this also. Okay. so बार बार यही सेम चीज़ मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, और मैं सॉल्यूशन इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपने होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं देन यू कैन ईजिली वेरीफाई दिस आंसर. ओके. ये क्वेश्चन 7 में भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ. ये 3/3 का मैट्रिक्स है, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड इनवर्स, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/8 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले रफ वर्क में जाना है, यही अगेन पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख लेना है, जो हमने ग्रीन कलर में लिखा है वो पूरा मैट्रिक्स लिख दिया. फिर फर्स्ट एंड सेकंड रो को नीचे लिखा, देन जो भी मैट्रिक्स मिला उसका अगेन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को वापस लिखा. ये प्रोसीजर हमने ऑलरेडी इसके आगे की वीडियो में देख ली है परफेक्टली, सो दैट अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे का वीडियो वापस एक बार देखो और ये प्रोसीजर समझ लो, ताकि कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना आए. ठीक है. एंड अगेन डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो भी आंसर बने उसके कॉलम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तुरंत जो भी आंसर बने उसको यहाँ पे लिखते जाओ फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम के आंसर सेकंड कॉलम में लिखो, एंड थर्ड कॉलम के आंसर थर्ड कॉलम में लिखो. ठीक है. बाय जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स, एंड देन यही पोजीशन में ये आंसर लिख लो, है ना. 10 - 10 2 फर्स्ट कॉलम, 0 5 - 4 सेकंड कॉलम, 0 0 2 दैट इज थर्ड कॉलम, एंड होल ट्रांसपोज. ओके. एंड देन इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम में कन्वर्ट करके ये बना लो. ठीक है. अब ये जो बन गया वो एडजॉइंट ए है. अब फाइनली अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, हमने डिटर्मिनेंट ए ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने के लिए मैंने क्या सोचा, देखो यहाँ पे मुझे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है. अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट में अगर ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट सोचो थोड़ी देर के लिए, और ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है. तो मैंने बताया था जब भी डायगोनल के ऊपर 0 या फिर नीचे 0 या दोनों साइड 0 हो, ऐसी एक मैंने नोट दिखाई थी आगे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, आगे के टॉप 3 वीडियो में मैंने फर्स्ट टू थर्ड वीडियो में मैंने कहीं पे नोट में बोला होगा कि अगर डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट के प्राइमरी डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे या फिर दोनों साइड 0 0 हो, देन द आंसर वुड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट. वो डायरेक्टली सोच सकते हो अगर नोट याद है तो तुरंत लिख लो 1 × 2 × 5 दैट इज 10. अगर ये नोट याद नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं, आप बाय जस्ट एक्सपांडिंग फर्स्ट कॉलम को एक्सपांड करके देख लो, 1 × 5 to the 10 -0 तो हो गया ना, 1 × 10 - 0 दैट इज 1 × 10.
फिर ये दोनों एलिमेंट तो ज़ीरो है, सो आगे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर याद आ जाता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है हमारा तुरंत, है ना। जस्ट मल्टीप्लाइंग डायगोनल एलिमेंट वी गेट द आंसर ऑफ डिटरमिनेंट ए विच इज 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया है, तो एडजॉइंट ए एंड डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लिख ली। वंस अगेन मैं बता देता हूँ, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। जब भी आपको ए इनवर्स की प्रोसीजर पूछे या फिर जब भी ए इनवर्स किसी की मैट्रिक्स में पूछे, तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट ए ही फाइंड करना है, ताकि अगर वो 0 आ जाए तो ए इनवर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब एडजॉइंट ए फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ यहाँ से लिख सकते हो कि भाई ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ना आए तो फिर आपको लिखना है सो इनवर्स एग्जिस्ट एंड देन आपको अप्लाई करना है एडजॉइंट ए की पूरी प्रोसीजर। ओके, सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू एडजॉइंट ए एंड डिटरमिनेंट ए वी गेट दिस आंसर। ओके, सो इसको इसी तरह के फॉर्म में रखो, चल जाएगा। इसको ये 10 को अंदर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये अगर डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, पूरा का ये 10 को पूरे के पूरे सभी एलिमेंट के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली 1/10 यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट इफ यू वांट। बट अगर नहीं कर रहे हो तो चल जाता है, कोई बात नहीं, है ना। देन क्वेश्चन 8 अगेन वही है, देखो डिटरमिनेंट ए सबसे पहले फाइंड करना है और देख सकते हो प्राइमरी एलिमेंट के प्राइमरी डायगोनल के ऊपर 0 है, इसीलिए मैंने जस्ट डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया डिटरमिनेंट ए फाइंड करने के लिए। 1 × 3 × -1 विच इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर एडजॉइंट ए की प्रोसीजर लिखो। शॉर्टकट वाले फॉर्मेट से आप ये पूरा बना लो फटाफट से, जितना हो सके उतना, विदाउट हैविंग एरर, कोई एरर ना आए, इस तरह से ये रफ वर्क में करके फटाफट से बना लो। फिर एडजॉइंट ए में वही पोजीशन में ये पूरा का पूरा लिख लो एंड ट्रांसपोज लिखो, एंड ट्रांसपोज लेके फाइनली जो भी आंसर बना वो एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट ए ये दोनों का आंसर ये फॉर्मूला में रख लो, ठीक है, तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन 9 अगेन वही है, 3/3 का मैट्रिक्स है और ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लिया है, नॉट इक्वल टू 0 आया इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर एडजॉइंट ए की पूरी प्रोसीजर अगर आपने सॉल्व कर लिया है, ये अगर सॉल्व कर लिए है ये सभी क्वेश्चन, देन यू जस्ट नीड टू वेरीफाई योर आंसर। और दूसरी ये बात कि मैंने जो भी प्रोसीजर या फिर जिस हिसाब से मैंने लिखा है वही पैटर्न से आप लिखोगे, देन यू कैन एबल टू गेट फुल मार्क्स इन एग्जाम ऑल्सो। तो आपकी जो राइटिंग है, एक्सप्लेनेशन लिखने की जो प्रोसीजर है वो भी परफेक्टली बन जाए, इसलिए मैंने ये सभी सॉल्यूशन को खुद से लिखे हैं, ना कि मैंने कोई बुक में से या फिर किसी राइडर में से या कहीं रेफरेंस बुक में से सॉल्यूशन को कॉपी करके स्कैन करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। वो करने से क्या होगा कि आपको जो उसमें लिखा है वो प्रोसीजर आपको देखनी पड़ेगी, फिर मैंने जो लिखवाया वो प्रोसीजर अलग होगी और वहाँ पे रेफरेंस बुक में जो सॉल्यूशन होगा उसकी प्रोसीजर थोड़ी अलग होगी, देन यू मे बी एबल टू कंफ्यूज in those two procedure to write in exam. So that is why I have written all the solutions by myself, similar procedure से लिखा है ताकि आपको वही प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एडजॉइंट ए की प्रोसीजर लिखने के बाद एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया, देन वही एडजॉइंट ए एंड डिटरमिनेंट ए की वैल्यू रखने के बाद आपका फाइनल आंसर मिल जाता है, ठीक है। वही सिमिलरली क्वेश्चन 10 में भी आप सॉल्यूशन देख लो, अगेन एंड अगेन ये सब दिखाने की और समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देन क्वेश्चन 11, ठीक है, डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लिया, 1 × -cos² - sin² विच इज़ माइनस कॉमन निकालने के बाद cos² + sin² 1 हो जाता है, सो -1, सो दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। देन अगेन रफ वर्क में मैंने ये प्रोसीजर अप्लाई कर ली, ये खुद से ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एनी हाउ यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। तो ये खुद से ट्राई करना है जितना हो सके, रफ वर्क वाली प्रोसीजर मैंने फिर भी रेफरेंस में यहाँ पे लिख ली है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड कोफैक्टर्स और वही कोफैक्टर को यहाँ पे लिख लो, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मुझे ट्रांसपोज लिखना है ना।
तो ये बाय मिस्टेक ट्रांसपोज नहीं लिखा है, जस्ट नीड टू राइट ट्रांसपोज हियर एंड देन इसका ट्रांसपोज लेके ये जो भी मिलेगा मुझे वो एडजॉइंट ए होगा। फिर वही फार्मूला ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए विच इज़ -1, वी हैव ऑलरेडी फाइंड -1 एंड एडजॉइंट ए पूरा का पूरा लिख लो और ये -1 अंदर दे दो, मतलब -1 अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये सभी जो नेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो ये अब ए इनवर्स वाले सब क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब जो क्वेश्चन 5 to 11 में सभी में ए इनवर्स फाइंड करना था वो खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है, इफ ए एंड बी इज गिवन लाइक दिस देन वेरीफाई दिस वन। ये भी एग्जाम्पल में था, उसमें भी वही था कि ए इनवर्स एंड बी इनवर्स और ए बी इनवर्स ये तीनों की तीनों चीज फाइंड कर लो एंड देन जस्ट LHS एंड RHS में पुट करके वेरीफाई कर लो कि रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 सही है, सिमिलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो पहले मैंने ए इनवर्स फाइंड कर लिया इससे, फिर बी इनवर्स फाइंड कर लिया। अब मैं प्रोसीजर वापस नहीं दिखाऊंगा और मैंने एक बार वापस वही बोलना है कि जब भी 2x2 का मैट्रिक्स और 2x2 का मैट्रिक्स हो और ए इनवर्स फाइंड करना हो देन यू डोंट नीड टू अप्लाई होल द प्रोसीजर ऑफ एडजॉइंट ए। वही A11 कोफैक्टर वाली प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर एडजॉइंट ए। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो एंड सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करो, बट फॉर 2x2 मैट्रिक्स ओनली, बिकॉज ये 2x2 मैट्रिक्स वाली प्रोसीजर टेक्स्ट बुक के अंदर दी है, शॉर्टकट की प्रोसीजर टेक्स्ट बुक के अंदर दी है, सो दैट इज वाई वी कैन अप्लाई। और जब भी 2x2 वाला क्वेश्चन होगा और इनवर्स फाइंड करने की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन थोड़ा तो लेंदी होगा ही, मतलब मे बी वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन होगा। सो यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप इनवर्स फाइंड करने के लिए 2x2 के क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने के लिए शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट प्रोसीजर दैट आई हैव गिवन यू फॉर 2x2 मैट्रिक्स ऑल्सो। ओके, सो अगर वो नहीं आ रही, वो अगर नहीं लिखनी है तो भी चल जाता है 2x2 के मैट्रिक्स के लिए, बट हाँ वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और सिर्फ इनवर्स पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन है ए अगर ये दिया है और ये फाइंड करना है ए इनवर्स, तो आपको पूरी प्रोसीजर लिख के वही A11 A12 वाली कोफैक्टर वाली प्रोसीजर लिख के दिखाना पड़ेगा। बट उसके चांसेस तो पॉइंट में भी नहीं है, 0.1% भी चांसेस नहीं है कि उस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स दे दे और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछ ले। ठीक है, सो जब भी 2x2 का क्वेश्चन हो और इनवर्स की कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मे बी क्वेश्चन कुछ लंबा ही होगा, सो यू कैन अप्लाई शॉर्टकट ओवर देयर। ओके, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि कब शॉर्टकट अप्लाई करना है और कब नहीं करना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली शॉर्टकट अप्लाई करना है। ठीक है, सो ए इनवर्स एंड बी इनवर्स फाइंड कर लिया, फिर ए बी फाइंड करने के लिए ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया, सो यू कैन सी दिस इज ए बी एंड देन ए बी इनवर्स, बराबर ए बी इनवर्स अगेन 1 अपन ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला होगा 1 अपन डिटर्मिनेंट ए बी, जिसका भी इनवर्स फाइंड करना है उसका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ओके, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बिकम व्हाट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब मैं छोटा सा मतलब इसकी थोड़ी प्रोसीजर में दिखा देता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फटाफट से फाइंड किया जाए, है ना। तो चलो इसको सोचो, समझ लो, ये मैं साइड में लिख लेता हूँ। चलो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। डेफिनेटली एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, और आपके पास कैलकुलेटर है, आप आराम से फाइंड करके आराम से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका ये है, अगर आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है तो क्या करो कि ये जो डिटर्मिनेंट ए बी है, ये जो भी एलिमेंट है उसमें वही आपको ये जितने भी एलिमेंट है जितने हो सके उतने कम करने की कोशिश करो। तो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, दिस आर स्मॉल एलिमेंट एज कम्पेयर टू सेकंड कॉलम। कॉलम 1 में जो है एलिमेंट वो 61 87 से छोटा है, 47 61 से छोटा है। एक काम करते हैं हम, कॉलम 2 में ये जो कॉलम 2 है उसमें अप्लाई कर देते हैं ना, कॉलम 2 बिकम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं होगा, कॉलम 2 में क्या हो जाएगा 87
है ना। कॉलम 2 87 माइनस कॉलम 1 87 माइनस 67 कितना होता है 20, सो ये हो जाएगा 20। और 61 माइनस 47, 61 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा 14, आई होप सो, यस, ठीक है। वापस वही चीज़, अब कॉलम 2 में छोटे एलिमेंट और कॉलम 1 में बड़े हैं, तो कॉलम 1 को चेंज करो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करके, या कॉलम 1 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2 करके कर लो चेंज, है ना, ताकि क्या हो जाएगा, देखो ये 67 माइनस 3 टाइम्स 20 मतलब 60, और ये 20 एज इट इज। 47 माइनस 3 टाइम्स 14, 47 माइनस 42 14, ओके। तो ये फाइनली बन जाएगा 6, ये 20 और ये 47 माइनस 42 दैट इज 5, यस 5 एंड ये 14। अब मेरे ख्याल से छोटे हो गए, अब कर सकते हो 14 6 जा 84 माइनस 100, मेरे ख्याल से कुछ एरर है, यहाँ पे है 7 है, यहाँ पे 67 माइनस 60 दैट इज 7, सो ये हो जाएगा 14 इंटू 7, 14 7 जा कितना होगा 96, है ना, 96 नहीं 98, ओके सॉरी 98 माइनस 100 दैट इज -2। तो आप देख सकते हो इसका आंसर -2, अगर मैं इससे भी बनाऊंगा तो -2 मिल जाएगा, और ये भी आंसर -2 है ना। तो अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और जेडब्ल्यू में से कुछ बड़े बड़े नंबर वाले क्वेश्चन दे दिए तो मुझे इस तरह से सोचना है, बराबर। और एक क्वेश्चन मैंने ये आगे की एक एग्जाम में भी पूछा था, आपको अगर याद हो तो मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, वहाँ पे कुछ 2005 6 7 8 या फिर कुछ 8 9 10 11 था। मैं यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन अगर बनाना चाहूँ तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड 2019 20 21 22 है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें भी वही करो, यहाँ पे कॉलम में एलिमेंट छोटे हैं इस कंपेयर टू दिस वन, सो अप्लाई कर लो कॉलम 2 बिकम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ताकि क्या बन जाएगा, ये तो पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे देख लो 2020 माइनस 2090 दैट इज 1, और 22 में से 21 जाएगा तो 1, तो हो गया। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 2019 माइनस 2021 देन आंसर इज -2, है ना। तो ये कैलकुलेशन बाद में इजी हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ आया और जेडब्ल्यू वाले के क्वेश्चन है और कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस वे, है ना, आप इस तरह से सोच सकते हो, ओके। ये तो मैंने साइड में हिंट मेरे माइंड में क्रिएट हुई थी, इसलिए आपको दिखा दी कि भी कैसे सोच सकते हैं आगे जब भी ये बड़े बड़े एलिमेंट है और वी डोंट हैव कैलकुलेटर, ओके। तो डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू मिल गई मुझे -2 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है उसका शॉर्टकट अप्लाई करके डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लिया, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को चेंज किया एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को नेगेटिव बना दिया, रिवर्स कर दिया ऑपोजिट। फिर आर एच ये हो गया LHS, ए बी इनवर्स फाइंड कर लिया, LHS हो गया। और RHS में क्या है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स हमने फाइंड ऑलरेडी कर लिया है, सो RHS में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स का आंसर मल्टीप्लाई करके फाइनली आई गॉट द सिमिलर आंसर विच इज LHS, सो हैंस वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, ओके। आगे बढ़ते हैं, और ये है लास्ट क्वेश्चन 13 जो मैंने होमवर्क में दिया था, और इस तरह का भी क्वेश्चन सिमिलरली एग्जाम्पल में था। बस इसमें पहले मुझे ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये सही है, मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, वो पहले बताना है ना, फॉर मैट्रिक्स ए सो दैट दिस वन, एंड देन इसका यूज़ करके मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। इसमें एडजॉइंट वाली मेथड से ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, वी नीड टू यूज़ द मेथड बाय विच ए इनवर्स कैन बी फाइंड इज यूजिंग दिस वन, इसी को यूज़ करके ही, क्योंकि हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो इसको यूज़ करके बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन यू नीड टू फाइंड ए इनवर्स, ओके। वो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे दिया था, फिर भी एक बार और इसमें भी सॉल्यूशन देख लो। इसको प्रूव करने के लिए ए स्क्वायर फाइंड करो, फिर ए स्क्वायर ए एंड आई की वैल्यू LHS में रख लो, डेफिनेटली यू विल फाइंड 0 0 0 0, दैट इज व्हाट RHS। नाउ ये जो भी इक्वेशन है उसको पहले लिख लो, टू फाइंड ए इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू राइट दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन से जब भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना हो, कैरेक्टरिस्टिक, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया था, याद हो तो मैट्रिक्स चैप्टर में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आफ्टर, हाँ इसमें और एक चीज़ खास ध्यान रखना, एक बीच में ना डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेना, जब भी ऐसा कुछ आए ना तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेना। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, वहाँ पे लिख दो कि ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए क्या बनेगा, देखो 3 टू 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 that is 7 which is not equal to 0, hence A inverse exist। अगर A inverse exist है इसीलिए मैंने A inverse से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज तो मैं A inverse पॉसिबल ही नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता ना। सो दैट इज वाई नाउ A inverse into A square, फर्स्ट विथ A square with A inverse को मल्टीप्लाई करेंगे, A inverse into A square मतलब A inverse into A which is I that we know very well, A inverse into I which is A inverse itself, A inverse into 0 matrix that is 0 matrix। A inverse का सब्जेक्ट बना लो एंड I एंड A की वैल्यू रख दो, जस्ट बाय सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने सभी क्वेश्चंस दिए थे सब होमवर्क में, और इसके बाद जो एक्सरसाइज में बचे हैं वो क्वेश्चन 13 तक मैंने होमवर्क में दिए थे। अब क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, 18 5 क्वेश्चन ही सिर्फ बचे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अब वो भी क्वेश्चन इतने इजी ही है बट मैंने होमवर्क में नहीं दिए थे डेफिनेटली, इतना ज़्यादा होमवर्क एक साथ में नहीं दे सकता, इसलिए फिर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो ये सब क्वेश्चन भी होमवर्क में। मैंने इसका भी सॉल्यूशन बना के रख लिया है क्वेश्चन 14, 15, 16, 17। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से वीडियो आप पॉज कर लो, एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ से वीडियो आप पॉज कर लो एंड क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, 18 अगर खुद से कर सकते हो तो ट्राई करो पहले रफ वर्क में। अगर सबके आंसर आ जाते हैं तो फिर फेयर बुक में लिख लो, बराबर, और नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को देखते जाओ एंड फेयर बुक में लिखते जाओ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपके आंसर में कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप यही सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो एंड अगर नहीं करना है, खुद से नहीं करना है तो फिर वीडियो को देखते जाओ, सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ सबका। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है ये। सबसे पहले तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। फॉर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया है एंड फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस इज ऑलवेज होल्ड बाय दिस मैट्रिक्स। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे ए का स्क्वायर फाइंड कर लेना है इस मैट्रिक्स से, मतलब इस इक्वेशन के अंदर रखने के लिए। तो मैंने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। ओके, ये ए स्क्वायर फाइंड करने की प्रोसीजर तो आपको पता है। फिर ये इस इक्वेशन में रख दिया सबको, ए स्क्वायर को रखा, ठीक है, 11, 8, 4, 3 विच वी हैव ऑलरेडी फाउंड। फिर प्लस ए इंटू कैपिटल ए की वैल्यू रख ली, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू रख ली, प्लस बी इंटू आई मैट्रिक्स दैट इज 0, 0, 0, सॉरी 1, 0, 0, 1 दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स विच इज 2/2 का अगेन 0 मैट्रिक्स 0, 0, 0, 0। ओके, अब इस तरफ के सभी मैट्रिक्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला फाइनल आंसर 11 प्लस 3a प्लस b, फिर 8 प्लस 2a प्लस 0। बाय दैट वे वी कैन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाओ एंड बेस्ड ऑन दैट हम एडिशन कर सकते हैं सभी मैट्रिक्स का एंड देन कंपेयर इट विद 0, 0, 0, 0। तो चारों के साथ मैंने 0, 0 कंपेयर कर लिया। तो आप देख सकते हो ये 2a प्लस 8 इक्वल टू 0 में a इक्वल टू -4 आ गया, इसमें भी a इक्वल टू -4 आ गया। हाँ, मैंने बताया था, याद हो तो, मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो जो भी अननोन एलिमेंट है उसके आंसर सिमिलर आने चाहिए। अगर दो जगह से मिल रहा है तो, मतलब a इक्वल टू -4 यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से a इक्वल टू 5 मिल रहा है, तो एक्चुअल में a इक्वल टू -4 एंड a इक्वल टू 5 दोनों एक साथ में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बीच में एंड है, इट मीन्स इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन की वजह से अगर -4 एंड -5 हुआ तो उसका इंटरसेक्शन 5 बोलते हैं हम लोग। दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे, 5। हाँ, अगर दोनों सिमिलर एलिमेंट है तो उसका इंटरसेक्शन डेफिनेटली वो खुद आ जाएगा। सो व्हेन एवर वी कंपेयर टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तब हमेशा ही सभी वैल्यू, जो अननोन वैल्यू है वो हमेशा ही सिमिलर आनी चाहिए सभी के इक्वेशन में, चारों के चारों इक्वेशन में। और यहाँ पे समझ लो a की वैल्यू रखने पे b इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू रखने पे b इक्वल टू 1 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे b इक्वल टू 2 आया तो हम लिख सकते हैं कि भाई a इक्वल टू -4 बट b इज नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली a एंड b आर नॉट पॉसिबल, देयर इज नो a एंड b पॉसिबल फॉर विच टू मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि b तो आया नहीं ना। तो एक आध भी नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ
कि बी की वैल्यू क्या रखूं मैं, ये दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए बी की वैल्यू क्या रखूं, आई कैन नॉट पुट एनी वैल्यू, इट मीन्स कि ये दो मैट्रिक्स को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता क्योंकि बी तो मेरे पास है ही नहीं। तो बी अगर है ही नहीं तो मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, यहाँ पे क्या लिखूँ, कुछ नहीं लिख सकता ना। सो दैट इज वाई आई जस्ट नीड टू राइट एट लास्ट कि देर इज नो सच ए एंड बी पॉसिबल फॉर विच दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, और यहाँ पे लिख सकते हो ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वेशन के आंसर में। बट यहाँ पे b इक्वल टू बी 1 आ गया, दैट्स वाई द आंसर इज b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू -4। क्लियर? ओके, क्वेश्चन 14। हाँ, ये क्वेश्चन 14 में कोई डाउट है, ये मैंने जो लास्ट में समझा ना, इसमें कोई डाउट है तो मुझे एक बार पूछ सकते हो लाइव लेक्चर में भी, क्योंकि ये स्टूडेंट के माइंड में थोड़ा बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी। तो डाउट है तो मैं थोड़ा कोई दूसरा एग्जाम्पल दे के भी मैं बता सकता हूँ कि ये एक्चुअल में सिचुएशन क्या हो रही है। ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल दूंगा जिसमें b की डिफरेंट वैल्यू आएगी या फिर a की डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो वहाँ पे मैं सिचुएशन दिखाऊंगा कि भाई ये ऐसी वैल्यू लेने पे अभी दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहे, देखो। सो दैट इज़ वाई a एंड b आर नॉट पॉसिबल, ये कुछ मैं रीज़न के साथ दिखाऊंगा। वो मैंने ऑलरेडी आई थिंक मैट्रिक्स चैप्टर में एक दो बार दिखा दिया है, फिर भी अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 15 सिंपल, जो हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये सब जो प्रूव किया था, ए स्क्वायर करके कोई इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको प्रूव करना था और उसके बेस से ए इनवर्स फाइंड करना है। वही चीज़ 3x3 मैट्रिक्स के लिए पहले ये इक्वेशन प्रूव करना है एंड बेस्ड ऑन दिस मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में क्या क्या है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है, ए तो है मेरे पास, आई भी है, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर मिल गया, ए तो है मेरे पास, ए इंटू ए करके ए स्क्वायर मिल गया, एंड ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर में मेरे पास है ये ए रहा, एंड a इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके, ए स्क्वायर एंड ए का मल्टीप्लीकेशन करके मुझे ए क्यूब का मैट्रिक्स का आंसर मिल गया। अब फाइनली ए क्यूब मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों को LHS में रख दूंगा मैं, एंड ए मैट्रिक्स तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, आई मैट्रिक्स भी ऑब्वियसली 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन गेट आंसर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विच इज जीरो मैट्रिक्स। हैंस ये जो भी अपना ए मैट्रिक्स है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब फॉर दिस ए मैट्रिक्स वी कैन प्रूव दिस वन इजीली। ओके, सो ये ए मैट्रिक्स के लिए प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। नाउ मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो मैंने क्या बताया, जब भी ए इनवर्स फाइंड करना हो और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हो तो मैं एडजॉइंट वाली मेथड नहीं कर सकता, आई नीड टू डू व्हाट, आई नीड टू अप्लाई दिस मेथड जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज हो। तो पहले मुझे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, देन ए इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद वट एवर आई गेट उसमें से ए इनवर्स को सब्जेक्ट बना लो। फाइनली जो भी मेरे पास इक्वेशन आए उसमें वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली है आगे, ठीक है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी, उसको रख लो यहाँ पे, माइनस इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 6 इंटू ए मैट्रिक्स, वहाँ क्वेश्चन में से लिख लो, -5 इंटू आई मैट्रिक्स, आगे 1/11, ये बड़ा सा ब्रैकेट लिख लो ताकि सब कुछ एक साथ में हो जाए। फिर ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स का समेशन सब्ट्रैक्शन करके ये लिख लो, -4 + 6 -5, ये सब कुछ है ना। फिर 1/11 आगे ऐसे रहने दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, विल गेट अवर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया ए इनवर्स यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ओके, तो ये क्वेश्चन अगेन मैं बोल देता हूं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं वो लोग, और बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 3/3 मैट्रिक्स के लिए पहले बोल देंगे ये इसको प्रूव करो और फाइंड करो ए इनवर्स को। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में नया कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे सब कुछ वैल्यू बनाते बनाते लिखते जाना है। पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर ए क्यूब फाइंड करना है, एन सभी को इसके अंदर रख के होल्ड करवा देना है ना, एंड देन ये एक्चुअल में मुझे ए इनवर्स की प्रोसीजर अप्लाई करके ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज सोचना, जब भी आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना हो तब 0 0 0 0 आंसर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप लिख लोगे, मुझे पता है। इट मीन्स व्हाट कि अगर लिखोगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं पे एरर है, मतलब 0 0 नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कहीं पे एरर है। तो एरर कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली ए तो क्वेश्चन में से ले लिया होगा, आई भी क्वेश्चन में से लिया होगा, तो एरर हो सकती है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, मे बी ये दोनों में एरर हो सकती है, ये दोनों में से किसी एक में। तो ए स्क्वायर एंड ए क्यूब में अगर एरर है तो डेफिनेटली वो लोग यहां से ही मार्क्स काटना चालू कर देंगे, क्योंकि वो लोग चेक करेंगे ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है,
एंड दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, अगर ए स्क्वायर में एरर है तो यहाँ से भी ए स्क्वायर की वैल्यू आप रॉन्ग रखोगे और इसकी वजह से ए इनवर्स का आंसर भी आपको रॉन्ग मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको पार्टियाँ बनाने की ज़रूरत भी पड़ गई और आपने पार्टियाँ बिठा भी लिया LHS इक्वल टू RHS 000 प्रूव करने के लिए, और आपको ऐसा लगा कि मैंने प्रूव कर लिया है, बट एक्चुअल में यहाँ पे कहीं पे गलती की है, तो भले ही आपने 000 लिख के आपको यहाँ पे RHS दिखाई दे रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि एग्जामिनर को मैंने दिखा दिया कि मैंने प्रूव कर लिया, बट उसको यहाँ पे दिखाई देता होगा कि ए स्क्वायर ए क्यूब की और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे उसने कुछ गलत लिखी है। ठीक है, तो खास ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेशन चेक करना ए स्क्वायर एंड ए क्यूब की, कहीं पे एरर है तो नहीं। ठीक है, चलो बस इतना ही था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए और CBSE वालों को 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन आई कैन से, और ये क्वेश्चन को खास बराबर से प्रिपेयर करना। और इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन 16 है, सिमिलर है क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है, ए मैट्रिक्स दिया है और इसको प्रूव करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। आप खुद से ट्राई करना कंपलसरी। ठीक है, इसको छोड़ना मत, आप खुद से ट्राई करना और कहीं पे भी एरर ना आए, अगर आए तो दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, बट एनी हाउ यू नीड टू कंप्लीट इट बाय योर सेल्फ ओनली। ओके, देन क्वेश्चन 17 एंड 18 लास्ट के 2 MCQ बचे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। जितना हो सके उतना पहले मीनिंग को निकालते जाओ, क्योंकि जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो डेफिनेटली उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। फिर क्या होगा, ऑर्डर 3x3 है तो इट मीन्स के n इक्वल टू 3। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो अगर मेरे पास फॉर्मूला है, तो मैंने याद हो तो बता दिया था कि इसका फॉर्मूला याद रख लो, अच्छी बात होगी। डिटरमिनेंट a रेस टू n माइनस 1, तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट a रेस टू n એટલે n मीन्स 3, 3 minus 1 which is 2, so determinant a whole square, that is our answer which is option B। फिर भी अगर आपको याद नहीं है, अगर फिर भी आपको याद ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो क्या मैंने बताया था, याद हो तो आपको प्रूव करना है ये फॉर्मूला साइड में कहीं पे भी। कैसे, तो सबसे पहले मैंने बताया था ए इनवर्स का ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें से एडजॉइंट ए को सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो गया ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब मुझे दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू चाहिए, तो मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया। अब यहाँ पे एक्चुअल में दिस वर्क एज अ कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो ये कांस्टेंट जो k है उसको मैं बाहर निकालूँ तो कितने पावर के साथ निकालूंगा मैं, ऑब्वियसली n पावर के साथ निकालूंगा। अंदर क्या बचा भाई, अंदर सिर्फ यही बचा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू n, और ये इनवर्स को मैं बाहर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ए रेस टू n माइनस 1। तो बाय दिस वे यू कैन डू इट एट योर एग्जाम ऑल्सो, एग्जाम टाइम में भी आप ऐसे प्रूव करके फटाफट से आंसर बना सकते हो, जब भी अगर याद नहीं है तो। ठीक है, और ये लास्ट वाला, फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अगेन मैं लिख सकता हूँ, अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैंने क्या बताया था, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये एक दूसरे एक्चुअली डबल इंप्लाइज है, अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हमेशा ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स कॉट कि डिटरमिनेंट ए कभी भी 0 होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये पता चली कि डिटरमिनेंट ए जो है वो 0 नहीं है, और दूसरा ऑर्डर 2 है तो n इक्वल टू 2। ओके, जब भी कुछ यहाँ पे लिखा हो तो वी शुड हैव सम पर्टिकुलर मीनिंग, है ना, हमको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको हम एक्चुअली कभी कभी इस लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ, तो ऐसा भी है ना, ये एक्चुअल में इसका मीनिंग ऐसा हुआ, हमको जो पता है वो लैंग्वेज, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर इनवर्स है तो उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए उसके बाद इनवर्स हो गया। अब ये जो है वो तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं, है ना। सो फाइनली आंसर क्या बन गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, DET ऑफ ए, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, बस तो इतना ही था आज के लिए। मैंने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है, बस आपको अभी प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके उतनी ज़्यादा रिवीजन करते रहो, है ना। मुझे लगता है तब तक मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए, एक्सेप्ट की क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और कंपलसरी ट्राई करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
चलो तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।